Now the next step is composing your business message by using or by creating effective sentences. We have discussed, or we are discussing that how we can compose a successful business message or composing a business message, or I have discussed it with you that while composing a business message you should keep three things in your mind, or there are the three levels viewing in your writing. Number one is that strong words, number two is effective sentences, and number three is current paragraphs. In the previous lecture we have discussed about strong words. Today we will discuss about effective sentences. So arranging your carefully chosen words in effective sentences is the next step in creating successful business message. In creating a successful business message, this is the second step, or this is the most important thing, that you create effective sentences. So in order to create an effective sentences, and you need to start by selecting the best type of a sentence. जब आपने जो है बात करनी है बिजनेस, जब आप एक बिजनेस मैसेज लिख रहे हैं, और सेकंड स्टेप ये है कि यू वांट टू कंपोज योर बिजनेस मैसेज, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट यू नीड टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेंटेंसेस. फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव सेंटेंसेस, ये इफेक्टिव सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए आपने ये चूज़ करना है कि विच इज़ द बेस्ट टाइप, और you need to select the best type of a sentence to communicate each point. So these are the four types of a sentences. Today we will discuss these four types of a sentences, and after discussing the four types of a sentences, while you are writing your business message, you will check that which sentence is suitable for your message. So among these four types of a message, the number one is that a simple sentence, number two is a compound sentence, number three is complex sentence, and number four is compound complex sentence. So before discussing is simple sentence, you should clear two things. The one is that I will use the term again and again in the whole lecture. The one is that dependent clause and independent clause. I will explain you what is a dependent clause and what is independent clause. So simple sentence is, पहले तो जो है वो हम इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, और बाकी फोर टाइप्स क्या हैं सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले यू शुड नो दैट कि व्हाट इज़ अ क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस और अ कंप्लीट मीनिंग. क्लॉज जो है वो अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कि एक मुकम्मल मीनिंग जो है वो कन्वे करता है, जिसको क्लॉज कहते हैं, और इट हैज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. यू नो दैट अ सेंटेंस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. एक जुमला जो है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद ना हो. सो दिस इज़ क्लॉज, इसको क्लॉज कहते हैं. सो क्लॉज इज़ अ सेंटेंस, और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स विच इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, and it conveys a clear meaning, or it conveys a complete sense or a complete meaning. That is said to be a clause. So now come to independence clause and dependent clause. Independent clause क्या होता है और dependent clause क्या होता है, इसके बाद इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे लेक्चर में ये दो तीन टर्म्स जो है वो यूज़ करूँगी कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो क्लियर हो गया कि क्लॉज क्या होता है. क्लॉज जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है वो होता है, और वो एक कंप्लीट सेंस या एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट इज़ हैविंग एटलीस्ट, I mean the independent clause also is having a subject and a verb, and it conveys a complete meaning. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या क्लॉज वही है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करता है. अब आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट मीन्स जो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स इट इज़ a group of words having subject and verb, but it doesn't convey a complete sense. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस और एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करता. सो दैट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ कम टू द फोर टाइप्स ऑफ अ सेंटेंसेस. अब फोर टाइप्स ऑफ अ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच इज़ having a subject, or in other words you can say that a simple sentence is a sentence which is having a one main clause.
जिसमें जो है वो एक, या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. Simple sentence is a sentence having one independent clause. It means that simple sentence is a sentence जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, वर्ब होता है, और इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस. क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस. दैट इज सेड टू बी अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि जो जिसमें वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और जो एक कंप्लीट जो है मीनिंग कन्वे कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही रैन इन द स्ट्रीट. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. यू कैन सी दैट ही इज अ सब्जेक्ट, रैन इज अ वर्ब. सो इन द स्ट्रीट आगे जो है वो आप इसमें ऑब्जेक्ट, अगर ये जुमला सिर्फ यूँ होता ही रैन, सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट इज़ हैविंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है. वो कैसे? क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्ट है, रैन क्या है, रैन जो है इसमें वर्ब है. अब इस जुमले में वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, और इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, और एक मुकम्मल मीनिंग भी दे रहा है. ही रैन, वो भागा, बात कंप्लीट है. सो इट इज़ हैविंग, सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच इज़ हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, ही रैन. और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स के हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट ऑल्सो कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग. जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता. क्लियर? सो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. नाउ कम टूवर्ड्स, इसकी 4 टाइप्स हैं जी सेंटेंसेस के. सेकंड टाइप है जी कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड आप अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, कंपाउंड मीन्स टू. कंपाउंड का अगर आप आम जुबान में मीनिंग देखें तो कंपाउंड मीन्स टू. सो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. अब आपको ये पता चल गया, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. ठीक है जी. सो कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच आर ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग कनेक्टर्स और यूजिंग कंजंक्शंस, जिनको आपस में उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है कनेक्टर्स यूज़ करके, या फिर जिसको आप कंजंक्शंस कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. कंजंक्शंस क्या होते हैं या कनेक्टर्स क्या होते हैं? कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स विच कनेक्ट द 2 सेंटेंसेस, जो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बट, बिकॉज, व्हेन, दैट, सो, दीज आर ऑल कनेक्टर्स, या फिर आप इसको कंजंक्शंस कहते हैं ग्रामेटिकली. सो कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. तो उसको क्या कहते हैं जी? और दीज 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइन टुगेदर बाय यूजिंग अ कंजंक्शन. और जिन 2 जुमलों को इकट्ठा किया जाता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इकट्ठा किया जाता है यूजिंग कनेक्टर्स या फिर यूजिंग कंजंक्शंस. और मैंने आपको बता दिया कंजंक्शंस कौन से वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज टू स्मॉल. सो यू कैन सी दैट the first part of a sentence, this house is too expensive, this is a one independent clause. क्यों one independent clause है? क्योंकि it is having a subject, it is having a verb और it also conveys a complete meaning. the house, this house इसमें subject है, ठीक है जी, और expensive इसमें जो है is too expensive. अब expensive इसमें जो है वो एक तरह से जो है वो रोल प्ले कर रहा है verb का, ठीक है. वैसे एक adjective है, तो दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव. सो दिस इज़ अ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज़ कन्वेइंग अ कंप्लीट मीनिंग, जो एक मुकम्मल जो है आपको मीनिंग कन्वे कर रहा है. एंड क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है जी. दैट हाउस इज़ टू स्मॉल, और वो घर जो है वो बहुत छोटा है. अब यहाँ पर जो है दैट हाउस एक सब्जेक्ट है, यानी कि इट मीन्स के 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइन टुगेदर यूजिंग एंड क्या है? कंजंक्शन. सो कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग 2 independent clauses joined together by using conjunctions or connectors are said to be compound sentences. और compound sentences जो होते हैं उनमें 2 independent clause होते हैं और दोनों को इकट्ठा ज्वाइन किया जाता है जी कनेक्टर्स के साथ. वो होते हैं जी कौन से सेंटेंसेस? कंपाउंड मीन्स 2. एग्जाम्पल मैंने आपको उसकी दे दी है, ठीक है जी. मिसाल के तौर पर ही, एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूँ. ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज he was not feeling well. He could not attend the meeting because he was not feeling well. He could not attend the meeting. You can see that he could not attend the meeting. अब आप ये देखें कि he could not attend the meeting. अब इसमें he जो है वो subject है और could not attend. Attend क्या है? Verb.
ठीक है जी। अब इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, जुमला यहाँ तक एक मुकम्मल सेंस, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है कि ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। बिकॉज सेंटेंस इज हैज़ बीन ज्वाइंट यूजिंग कनेक्टर और कंजंक्शन। बिकॉज इज अ कंजंक्शन, ठीक है जी। बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ सब्जेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वर्ब एंड इट ऑल्सो कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। सो ही जो है सब्जेक्ट है और फीलिंग जो है इसमें क्या है, वर्ब है। और ये जुमला पूरी मुकम्मल सेंस अलहदा भी अगर आप इसको उठा कर देख लें, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि वो ठीक अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं कर रहा था। क्लियर जी। अब आते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स आपको पता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स अगर आप उसको आम जुबान में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स मीन्स पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड। सो कॉम्प्लेक्स हियर मीन्स दैट अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस एटलीस्ट हैविंग, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन आपको पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई रिपीट, कि हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। बट लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कौन सा क्लॉज होता है, क्लॉज होता है जो कि हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस। और चूंकि ये डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये कनेक्ट होता है, ये आइडिया जो है वो कनेक्ट होता है, डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, ठीक है जी। तो इट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस एटलीस्ट हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है जी। और उसको कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इट मीन्स के जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कनेक्ट होता है, वो उसी आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में मौजूद होता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज में बजाते हैं खुद जो है वो कन्वे नहीं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद होते हैं बट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज हेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। ऑल्दो ही वॉज हेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। अब ये देखें, ऑल्दो ही वॉज हेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। अब ये दोनों जुमले आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर ऑल्दो ही वॉज हेल्दी, अब ये जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। अब ही वॉज स्टिल अनहैप्पी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ऑल्दो इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस अगर आप इसको अलहदा करके देखें तो जुमला कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, क्यों ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, नो रीज़न। अगर आप इसको पहले वाले के पार्ट के साथ लिखेंगे, यानी कि डिपेंडेंट जो है क्लॉज वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ रिलेट कर रहा है, फिर ही आपको पूरा मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है जी। अगर आप इसको अलहदा से ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, यू कैन सी दैट ही जो है इसमें सब्जेक्ट है और अनहैप्पी जो है आप इसको जो है वो स्टिल अनहैप्पी, आप इसको अनहैप्पी को वर्ब ले लें तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर आप इसको अलहदा करके देखेंगे इट इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट इज़ नॉट कन्वेइंग अ कंप्लीट मीनिंग, ये एक मुकम्मल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, ठीक है जी। और जब आप इसको ये जो है वो कनेक्ट कर रहा है उसी आइडिया को जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में है। सो कॉम्प्लेक्स sentences are those sentences having one independent clause and one dependent clause. Clear? Now the next is compound complex sentences. compound complex sentences कौन से होते हैं? अब इसमें compound भी है और complex भी है, ठीक है जी। तो compound complex sentences वो होते हैं जो कि compound sentence क्या होता है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपसे कि compound sentences are sentence having two independent clauses, ठीक है जी। और कंपाउंड कम्प्लेक्स, अब इसमें जो है कंपाउंड कम्प्लेक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है एटलीस्ट हैविंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो एक ऑब्वियसली जो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो है वो अटैच होता है और उस पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि अगर आप उस डिपेंडेंट क्लॉज को अलहदा निकाल लेंगे तो ऑल्दो इट इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट इज़ नॉट कन्वेइंग अ कंप्लीट सेंस एंड कंप्लीट मीनिंग। तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है इट एटलीस्ट हैविंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स हर ब्रदर and he loves her too because she pays her bill. अब you can see that these इसमें इस पूरे सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और वन डिपेंडेंट क्लॉज है। किस तरह से देखें, he loves her too, अब अगर आप देखें she loves her brother, this is one independent clause, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
शी लव्स हर ब्रदर, जुमला कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट भी है, शी लव्स जो है वो इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों इन्वॉल्व हैं, जुमला एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर आप इतने हिस्से को अलहदा देखें, शी लव्स हर ब्रदर, सेंटेंस इज कंप्लीट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज़ हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट इज़ गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है जी। अब अगर आप ये देखें, एंड ही लव्स हर टू, अब ये एंड ही लव्स हर टू, ये जो है जुमला, ये इस पे डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है जी। अब यहाँ अगर आप इसको इस तरह से अगले वाले के साथ कनेक्ट कर लें, देखें, एंड ही लव्स हर टू बिकॉज शी पेज हिज बिल, शी पेज हिज बिल। अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और चूंकि ये बिकॉज के साथ, बिकॉज जो है कनेक्टर यूज़ करके हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ही लव्स हर टू, तो ये क्या है, एंड ही लव्स हर टू, ये जो है ये एक डिपेंडेंट, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है और साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज है। शी पेज हिज बिल, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ही लव्स हर टू, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है जी। यानी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब ये देखिए, शी पेज हिज बिल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर आप इसको अलहदा जुमले को देख लें तो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। लेकिन अगर आप ही लव्स हर टू, अगर इसमें ही लव्स हर टू, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, इसमें ही सब्जेक्ट है और लव्स जो है इसमें वर्ब है, लेकिन अगर आप इसको अलहदा करके देखेंगे, ही लव्स हर टू, इट डजंट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, तो ये जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सो इस जुमले में ये एक कंपाउंड कम्प्लेक्स जुमला है, बिकॉज इट इज़ हैविंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें जो सेंटर वाला जुमला है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप इसमें देखें, शी लव्स हर ब्रदर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ही लव्स हर टू। ठीक है जी। और बिकॉज शी पेज हिज बिल, अब ये वाला जो बाकी का हिस्सा है ये क्या है, ये इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अनदर एग्जांपल इज, शी लाइक्स टू स्लीप इन बट शी कैन गेट अप अर्ली इफ़ शी हैज़ वर्क। ये थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। एक और एग्जांपल देखें जो थोड़ी आसान है आपके लिए। अली डज नॉट लाइक कार्टून्स बिकॉज दे आर लाउड, so he does not watch them. Ali does not like cartoons. This is an independent clause. ये एक independent clause है, ये जुमले में ये एक independent clause हो गया। ठीक है जी। because they are loud, ये क्या है, इसमें dependent clause है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि अली डज नॉट लाइक कार्टून्स, अली कार्टून्स जो है वो पसंद नहीं करता, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग। अगर आप इस जुमले को अलहदा से भी लिख के देखें तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बिकॉज दे आर लाउड, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये पहले वाले के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, पहले वाले आइडिया को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। ऑल्दो इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। दे इसमें सब्जेक्ट है, लाउड इसमें जो है वो क्या है, वर्ब है, लेकिन इट इज़ नॉट कन्वेइंग अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें, ही डज नॉट वॉच दैम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें अगेन यू आर हैविंग अ सब्जेक्ट, ही इज़ अ सब्जेक्ट और वॉच जो है इसमें वर्ब है। सो but it is also giving you a complete meaning. He does not watch them, so this is also an independent clause. इसमें भी एक independent clause है। तो पूरे जुमले में दो independent clause है और एक dependent clause है। According to the definition of compound complex, this is a sentence of compound complex having two independent clauses and one dependent clause. Clear? So this is the sentences. So and up ये तो थी, these are the four types of a sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. अब हम बात कर रहे थे कि composing your message, creating effective sentences. So this is the second step in composing your business message, कि you need to create an effective sentences. And after knowing that which sort of a sentences, which type of a sentences you are going to use फॉर कंपोजिंग अ बिज़नेस मैसेज, कि इनमें से आप कौन सी टाइप वाला सेंटेंस जो है वो चूज़ करेंगे अपने बिजनेस राइट जो मैसेज है उसको जो है वो लिखने के लिए। क्लियर जी। और इसमें जो है सिर्फ यही जो है, इसमें आपने यूजिंग सेंटेंसेस, आपने जो है अपनी सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है, स्टाइल को, टू एम्फसाइज द की थॉट्स, और आपने उसके बाद ये देखना है कि वो कौन सा जो है इन एवरी मैसेज सम आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स, कि कुछ हर मैसेज में, बिजनेस मैसेज में कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जो दूसरे आइडियाज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और आप जो है फिर आपने देखना है कि आप इसमें कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। आप कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करेंगे। यू कैन एम्फसाइज की आइडियाज़ थ्रू योर सेंटेंसेस स्टाइल, तो ये आपका सेंटेंस स्टाइल होगा कि आप कौन से स्टाइल का सेंटेंस यूज़ करते हैं। वन ऑब्वियस टेक्निक इज़ टू गिव इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू द मोस्ट स्पेस,
When you want to call attention to a thought, use extra words to describe, consider these sentences. ठीक है जी. So this is the style of sentences. So you have to choose which style you will use to make an effective steps in composing your business message. And our next topic is composing, और the last thing is that जो हमने भी डिस्कस किया था कि 3 राइटिंग लेवल हैं. इसमें से हम 2 things we have already discussed. Number 1 was using a strong words. Number 2 was emphasizing using effective sentences, and third is coherent paragraph. So in the next lecture we will discuss composing our message, crafting coherent paragraphs. कि वो coherent paragraphs जो हैं वो क्या होते हैं, और वो जब आपने ये थर्ड स्टेज है कि आपने सबसे पहले जो वर्ड्स चूज़ कर लिया, आपने देख लिया वर्ड्स कैसे चूज़ करने, उसके बाद आपने स्टाइल चूज़ कर लिया सेंटेंसेस का, और आपने इफेक्टिव सेंटेंसेस चूज़ करने के बाद जो है बात आती है कि आपने मैसेज को पैराग्राफ की फॉर्म में जब लिखना है तो आपके पैराग्राफ्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए और coherent होने चाहिए. थैंक यू.